So our next topic after discussing that three-dimensional close packing, the next thing is packing efficiency of crystal lattice. Actually, packing efficiency means when atoms or any kind of particles are arranged to form a solid structure, then you know that atoms are spherical in shape. So always some empty spaces are generated, and these empty spaces are known as voids. And the size of the voids and the type of the voids depend what type of geometry it is. For example, if you see here in this diagram, so in case of that, if you see in case of simple cubic structure, as you know that each atom is vertically and horizontally aligned with each other, so a large number of, or you can say larger size of voids are created. So higher, or you can say greater the size of the voids, lesser will be the packing efficiency. Packing efficiency होती है कि total क्रिस्टल लैटिस में जितना वॉल्यूम अवेलेबल है, थ्री डायमेंशनल वॉल्यूम जितना एक क्रिस्टल लैटिस का है, या अगर हम एक यूनिट सेल को हम कंसीडर करते हैं, तो इस यूनिट सेल के अंदर सपोज ये क्यूबिक यूनिट सेल है, तो एंटायर वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबिक यूनिट सेल इज नॉट फिल्ड अप विद द एटम्स. उसके सारा स्पेस एटम्स से ऑक्यूपाइड नहीं होता. ऑलवेज सम अमाउंट ऑफ वॉइड्स और सम अमाउंट ऑफ एम्प्टी स्पेस इज देयर. तो ये हम कैसे निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसीज के लिए? एक सिंपल सा फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं. वॉल्यूम ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स उस यूनिट सेल के अंदर हैं, उनका वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, वो होता है पैकिंग फ्रैक्शन. और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंटेज जो आता है दैट इज नोन एज पैकिंग एफिशिएंसी. तो एज यू नो दैट देयर आर वेराइटी ऑफ यूनिट सेल्स लाइक सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड. आपको ये 3 डिफरेंट यूनिट सेल्स के लिए पैकिंग एफिशिएंसी हमने फाइंड करनी है. तो लेट अस सी हाउ इट कैन बी डिराइव्ड. डेरिवेशंस हैं इन तीनों के लिए, छोटी छोटी सी, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज द सिंपल मैथ्स इज अप्लाइड ओवर देयर. So if you want to note down, you can note side by side. So packing efficiency in crystals, as we have already discussed about the three-dimensional closely packed structures. And we know that when we arrange molecules in three-dimensional packing, we get variety of patterns like simple cubic, body centered, face centered, and always there is some vacant space generated in between these constituent particles, and these vacant spaces are known as voids. And as we have already discussed about this, that these voids are also of two types. Like when we put a hexagonal layer over one over other, then in second layer, मतलब एक लेयर में तो आपको सिंपल सारे वॉइड्स एक जैसे ही मिलते हैं, बट इन केस ऑफ यू कैन से जस्ट वेट, इन केस ऑफ यू कैन से व्हेन यू प्लेस सेकेंड लेयर ओवर द फर्स्ट, तो सेकेंड लेयर से आपको दो डिफरेंट टाइप के वॉइड्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ वॉइड्स विच आर you can say surrounded by 4 atoms are called tetrahedral voids, and the other one which is surrounded by 6 atoms are called octahedral voids. And percentage of total space filled by the particles is called packing efficiency. और एक particular crystal structure में या एक unit cell में कितना percentage particles occupy कर रहे हैं उन voids को छोड़कर, that is known as packing efficiency of a crystal structure. So firstly, we'll discuss the simplest one, which is the simple cubic lattice. जिसको हम primitive unit cell भी कहते हैं. And as you know that simple cubic structure, we have 8 atoms present at the corners of the cubic lattice. हर एक atom एक cube के corner पे present है. And we have already discussed this thing that each and every atom has participation or contribution in this unit cell is 1/8. ओके, तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक क्यूबिक यूनिट सेल में हम जब निकालते हैं तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 1/8 इज 1 आता है आपके पास. ठीक है. और अगर हम एक एटम को स्फेरिकल शेप एज्यूम करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज ऑलवेज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब. हियर r इज द रेडियस ऑफ दिस एटम, एंड एज यू कैन सी एज लेंथ, ये जो a आपको नजर आ रहा है डायग्राम में, दिस a इज कॉल्ड एज लेंथ.
and this edge length is equal to, because two atoms are in contact with each other, so that A is equal to 2R. वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो क्यूबिक है हमारा, इट विल बी इक्वल टू, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, दैट इज इक्वल टू 2R क्यूब, दैट इज 2R होल क्यूब और 8R क्यूब यू कैन से. तो पैकिंग एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स उस क्रिस्टल यूनिट सेल के अंदर, एक यूनिट सेल के अंदर हैं, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ एंटायर यूनिट सेल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन दिस फॉर्मूला. Volume of one atom over volume of cubic unit cell multiplied by 100, and if we put the value, one atom has value 4/3 volume, and the total unit of volume of unit cell is 8R cube, and when we solve it we get pi by 6 multiplied by 100. Some books beta you can also find packing fraction ही उन्होंने find किया, तो it can be 0.5236 or 0.524, but packing efficiency is always given in percentage, so it will be 52.4%. तो ये आप थोड़े टाइम के लिए, मतलब एक आपको टिप्स पर ये वैल्यूज भी होनी चाहिए ना. सिंपल क्यूबिक लैटिस पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ क्रिस्टल इज 52.4%, और एम्प्टी स्पेस जो वॉइड्स ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वो वैसे जनरली पूछा नहीं जाता, बट 100 से माइनस करके आप फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट इज पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP एंड CCP स्ट्रक्चर. Actually, HCP and CCP structures with coordination number 12 has exactly similar packing efficiency. Okay, but derivation methods are different. But in your syllabus, you have derivation only for CCP structure. CCP is a kind of FCC lattice. And if we see FCC unit cell, so you know that atoms are present at the corners at the center of the each face. और फेस पे जो ये एटम्स है बेटा, ये फेस के डायगोनल पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब कॉर्नर के एटम टच नहीं करते, बट फेस डायगोनल पे एटम टच करते हैं. तो वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फेस डायगोनल विच इज AC इज इक्वल टू B, और इसको हमने B एक तरह से नेम दे दिया, एंड इट इज इक्वल टू 4R, क्योंकि ये देखो एटम जब टच कर रहे हैं तो 4R के ये इक्वल हो जाएगा. अब आपको इस एज लेंथ A की जो वैल्यू है वो एग्जैक्टली 2R के इक्वल नहीं है, बिकॉज दीज आर नॉट इन टच विद ईच अदर. तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला द पाइथागोरस थ्योरम टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. तो दिस ट्रायंगल इज फॉर्म्ड हियर ABC, और इसमें हम वैल्यू अगर पुट करते हैं AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो विल गेट B इज इक्वल टू, और B स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, एंड B इज इक्वल टू √2A. And as you know, B is equal to 4R, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि फेस डायगोनल टच कर रहे हैं एटम्स, तो इट इज इक्वल टू 4R. तो A will be equal to 2√2R. If we derive or if we find this, we'll be getting formula for A. Edge length is equal to 2√2R. तो ये हो गया आपका एज लेंथ एक FCC यूनिट सेल में. वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल अगेन आपका A क्यूब है, A की वैल्यू हमारे पास 2√2R आ गया, तो दैट विल बी इक्वल टू this, इसको होल क्यूब आप कर दोगे तो यू विल बी गेटिंग द वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल. एंड एज यू नो FCC लैटिस हैज 4 एटम्स, तो अब आपको यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 4 एटम्स फाइंड करना है. तो एक एटम का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब है, मल्टीप्लाइड विद 4 यू विल बी गेटिंग 16/3 पाई r क्यूब. अगेन पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारा है टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द एंटायर यूनिट सेल. यूनिट सेल आपकी क्यूबिक यूनिट सेल A क्यूब वैल्यू पुट कर दिया आपने, और इधर आपके 16/3 पाई r क्यूब आ जाएगा, मल्टीप्लाइड विद 100, एंड यू विल बी गेटिंग हियर एज. तो पूरा सॉल्व करोगे जब आप बेटा, देन आंसर विल बी 74% जो है पैकिंग एफिशिएंसी होती है. और ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था कि सिंपल क्यूबिक के कंपैरेटिवली जो फेस सेंटर्ड या बॉडी सेंटर्ड है उनकी पैकिंग एफिशिएंसी हायर होती है, बिकॉज उनमें हम डिप्रेशंस में एटम्स फिल करते हैं. तो ऑन सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू 74%. एंड ऑलवेज रिमेंबर वेदर इट इज एन HCP लैटिस और CCP, पैकिंग एफिशिएंसी इज 74%. हाँ, डेरिवेशन दोनों की अलग है, बट इन योर सिलेबस ओनली CCP इज गिवन इन योर बुक. Next, third type of packing is body-centered cubic unit cell. In body-centered cubic unit cell, you know one atom is present at the center of the unit cell और बाकी 8 कॉर्नर पे हैं. एंड ऑलवेज रिमेंबर, इस बॉडी के सेंटर में एक एटम आने से कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे को टच नहीं करते,
ओनली दे आर टचिंग एट बॉडी डायगोनल्स. बॉडी डायगोनल्स पे एटम दो कॉर्नर वाले और बीच में जो बॉडी सेंटर है ये आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं. तो दिस बॉडी डायगोनल which is shown here with this yellow line is equal to 4r. तो ये जो C आपको लाइन मिल रही है ये आपके पास इसकी जो वैल्यू आएगी that will be equal to 4r. अब यहाँ पर एज लेंथ जो है that will not be equal to 2r और 2 root 2r, वो हमें फिर फाइंड करना है. तो फर्स्टली वी नो दैट AF बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू C which is equal to 4r. अब हमें बॉडी डायगोनल C और फेस डायगोनल बी दोनों की वैल्यूज निकालनी है. एंड फेस डायगोनल वैसे हम पिछले डेरिवेशन में कर चुके हैं, बट यहाँ दोबारा डिराइव जब आपने करना है तो यू नीड टू फाइंड इट. तो इस बॉडी डायगोनल की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको ये ट्रायंगल कंसिडर करना है EFD. तो EFD ट्रायंगल में आप फिर से पाइथागोरस थ्योरम जब लगाओगे यू विल बी गेटिंग B इज इक्वल टू 2b square is equal to 2a square. तो B is equal to root 2a. तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड बिकॉज ये एक फेस डायगोनल है तो एफसीसी में हमने डिराइव किया है, बट यहाँ आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अदरवाइज यू कैन डिराइव ऑल्सो. नाउ इन दिस ट्राइंगल विच इज वी आर कंसिडरिंग A, F एंड D बिकॉज हमें ये एज लेंथ फाइंड करनी है. B की वैल्यू हमारे पास आ गई है अब और C की वैल्यू हमें पता है 4r. तो वी पुट द वैल्यू ऑफ C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. हमें फाइंड करनी है वैल्यू A की. ठीक है, B हमारे पास आ गया था रूट 2a, उसका स्क्वायर किया तो 2a स्क्वायर. तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर. एंड इफ वी नीड टू कैलकुलेट C विच इज इक्वल टू रूट 3a. तो C इज बॉडी डायगोनल विच इज इक्वल टू 4r. ये देखो आप चारों एटम्स जो हैं वो इस तरह, तीनों एटम इस तरह से कांटेक्ट में हैं. तो रूट C की जो वैल्यू अगर हम निकालते हैं दैट इज रूट 3a विच इज इक्वल टू 4r. तो A इज इक्वल टू 4r over root 3. This is the edge length in case of BCC lattice. ठीक है. एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो है वो आपका अगेन A क्यूब है. आपको इस पूरी A वैल्यू का क्यूब करना है, तो दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. अब बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर टोटल एटम्स आ रहे हैं आपके पास 2, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड कि कैसे ये 2 आते हैं. अब ईच एटम इज कंसिडर्ड एज वन स्फीयर, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम्स विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 over 3 pi r क्यूब. ये हो गया आपका एटम्स का वॉल्यूम बीसीसी यूनिट सेल में और ये हो गया आपका यूनिट सेल का वॉल्यूम. क्लियर. नाउ यू नीड टू फाइंड अगेन पैकिंग एफिशिएंसी विच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके, तो दैट इफ यू सॉल्व द सिंपल मैथ्स, आपको ये सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप याद रख सकते हो क्योंकि ये 3 ही आपको सिलेबस में है. तो इट विल बी इक्वल टू, if you find this 8 by 3 pi r cube over 64 3 root 3 r cube cancel हो जाएंगे, multiplied by 100%. तो this will be 68%. अप्रोक्सीमेट डेसिमल्स में जो भी वैल्यू आती है आपको राउंड ऑफ करके 68% वैल्यू आ जाएगी. तो पैकिंग एफिशिएंसी इन अ बीसीसी यूनिट सेल इज 68% और जो वॉइड्स ने एरिया कवर किया है वो है 32%. दिस इज द प्लेन एम्प्टी स्पेस इन केस ऑफ BCC unit cell. So this derivation can be asked in 3 mark questions. And finally जो टेबल आपको एक नोटबुक पे लास्ट में बना लेना इस टेबल को, अदरवाइज इन रेफरेंस बुक्स तो इट इज गिवन बट इन NCERT इट इज नॉट गिवन. तो यू कैन मेमोराइज दीज रिलेशनशिप्स डायरेक्टली. तो रिलेशन क्या हमारे पास, एज लेंथ A हम कंसिडर कर रहे हैं पूरे चैप्टर में. रेडियस को हम, जो एटम है हर एक लैटिस के अंदर एटम का रेडियस r लिया हमने. एंड नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हम कहते हैं कि दैट जो एटम्स एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे हैं उन दोनों के सेंटर का जो लीनियर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विच इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल D. ओके, तो अब हमें इन तीनों में कैसे रिलेशन अप्लाई करना है, अभी हमने डिराइव तो कर लिया, बट जस्ट एक बार रिकैप वी कैन हैव. टाइप ऑफ यूनिट सेल सिंपल, हैव अ लुक एट दिस. अब एक चीज याद रखो बेटा, सिंपल यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स कॉर्नर पे हैं, बिकॉज बॉडी के अंदर कोई एटम नहीं है, फेस सेंटर पे भी कोई एटम नहीं है, ओनली एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल्स. हेंस एंड दीज एटम्स एट द कॉर्नर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब वो एक दूसरे को टच करते हैं.
यहाँ और यहाँ जो बीसीसी और एफसीसी है उनके कॉर्नर वाले एटम्स कभी भी आपस में टच नहीं कर रहे होते, क्योंकि या तो फेस के सेंटर में एटम आ जाता है या बॉडी सेंटर में एटम आ जाता है। तो ये जो ए जो एज लेंथ है ये एग्जैक्टली 2r नहीं होती, जो यहाँ पे 2r है, एक एटम का रेडियस r, ये दूसरे एटम का रेडियस r, तो दिस a is exactly equal to 2r because atoms at the corners are touching each other. तो simple cubic lattice has a is equal to 2r. तो simple relation जो आपको मिल रहा है edge length और radius of atom में, that is a is equal to 2r. Now how we can relate it with d? D is here nearest neighbor distance. नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का मतलब दो एटम्स जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं उनके सेंटर की डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस क्या है, ये इस एटम का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ दिस एटम। तो दिस होल डिस्टेंस which is equal to 2r is denoted by the symbol d, which is known as nearest neighbor distance. ये दोनों टर्म में कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आपने r जो है वो एक ही एटम की रेडियस है and nearest neighbor distance d is the linear distance between two atoms in contact with each other. जो दो एटम्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नियरेस्ट नेबर हैं, उनके बीच की, उनके सेंटर्स को अगर हम ज्वाइन करते हुए एक लाइन बनाते हैं, लीनियर डिस्टेंस जो है वो है d. तो इट इज ऑलवेज इक्वल टू 2r. ये आपने याद ही रखना है, क्योंकि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस तभी पूछी जाएगी, उन्हीं एटम्स की पूछी जाती जो एकदम से कांटेक्ट में होते हैं। तो इट इज ऑलवेज d इज ऑलवेज इक्वल टू 2r. एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल अभी हमने देखा a क्यूब होता है, तो a क्यूब इज इक्वल टू 8r क्यूब। आप ये भी एक 2 मतलब a की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली वॉल्यूम निकाल सकते हो एंटायर यूनिट सेल का। नाउ एक और टर्म, अभी तक आप z जो है हम लोग केमिस्ट्री में एटॉमिक नंबर के लिए यूज करते हैं, कैपिटल Z, बट इन सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री हियर दिस Z सिंबल इज यूज्ड फॉर नंबर ऑफ एटम्स इन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम 1 है, बीसीसी के लिए 2 है, एफसीसी के लिए 4 है, एचसीपी हेक्सागोनल जो होता है उसके लिए 6 होते हैं। तो ये किस टाइप की यूनिट सेल है उसके बेस पे जेड की वैल्यू होती है। एंड सेंटर्ड के लिए जो वैल्यू है वो भी 2 आती है। तो ये जेड जो आपको यहाँ पर आगे हमने एक और फॉर्मूला करना है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल लैटिस, तो उसमें जेड यूज होगा। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री में जब भी हम जेड लिख रहे हैं, दैट कई बार बच्चे इसके लिए एटॉमिक नंबर लिख के आ जाते हैं, यहाँ आपको एटॉमिक नंबर से कोई मतलब नहीं है। इन दिस चैप्टर यू आर डीलिंग विद नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ये वो सिंपल क्यूबिक लैटिस है, बीसीसी है या एफसीसी है, अकॉर्डिंगली यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ जेड। क्लियर? It's very important thing to note down. Z here represents the number of atoms in a unit cell. So for BC, for simple it is 1. Now volume of atom per unit cell, जो एक जितने एटम हैं आपकी यूनिट सेल में वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो हो गया हमारा 4/3 पाई r क्यूब फॉर सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, बिकॉज वी हैव जस्ट वन एटम। तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है, वॉल्यूम ऑफ एटम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो आपकी वो पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू आती 0.523 और इसको कई बुक्स में 0.524 भी कर दिया राउंड ऑफ करके। और पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारा परसेंटेज है मल्टीप्लाई कर दो उसको 100 से, जो हमने अभी डिराइव किया, तो इक्वल टू 52.4%। ओके, नाउ वी कम टू बॉडी सेंटर। अब बॉडी सेंटर में बेटा देखो, बॉडी के सेंटर पे जो एटम है वो क्यूब के अंदर है, तो एक कॉर्नर ले लो इस ये वाला और दूसरा कॉर्नर उसके बिल्कुल ऑपोजिट एंड का दूसरा कॉर्नर, ये दोनों एटम्स इस बॉडी डायगोनल पे इस बॉडी सेंट्रल एटम को टच कर रहे हैं। मतलब फेस पे भी कोई कांटेक्ट नहीं है एटम्स का, क्योंकि फेस के सेंटर में कोई एटम ही नहीं है, ना कॉर्नर्स के एटम टच हो रहे हैं आपस में क्योंकि बीच में ये एक एटम आ गया। क्लियर? तो हेयर द एटम्स विच आर इन क्लोज कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, की ये 8 के 8 एटम्स इस सेंटर वाले एटम को सिर्फ बॉडी डायगोनल पे टच करते हैं। बॉडी डायगोनल का मतलब है कि क्यूब के सेंटर में से होता हुआ जो डायगोनल जाएगा, दैट इज नोन एज बॉडी डायगोनल। तो दिस बॉडी डायगोनल पर एटम्स टच कर रहे हैं, कॉर्नर पे नहीं। तो ये ए की जो वैल्यू है यहाँ पर वो एग्जैक्टली 2r के इक्वल नहीं होती है, बीच में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस आ गया है। दैट इज व्हाई इन एफसीसी एंड बीसीसी ए इज मोर देन 2r, ए जो है वो 2r से हायर होगा।
तो बॉडी सेंटर में ए की वैल्यू होती है, हमने अभी डिराइव किया 4/√3r या 4r/√3, ये जो वैल्यू आपके पास अभी हमने डिराइव कर ली थी, ये हमारा रिलेशनशिप था a एंड r के बीच में. नाउ इफ वी वांट टू रिलेट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस विद a, तो इस 4r में से 2r की जगह आपने d पुट करना है. d इज ऑलवेज इक्वल टू 2r. तो 4r में से 2r अगर हम निकाल दें तो बचेगा क्या? ओनली 2. तो वी हैव हियर 2d/√3. So this is the relationship between edge length and nearest neighbor distance of a BCC unit cell. Now A is equal to a cube की वैल्यू जो हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालेंगे, a cube is equal to here, इसका आपको पूरा क्यूब रूट ले लेना है. ठीक है. नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल बॉडी सेंटर के लिए 2 होता है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स, टोटल एटम्स जितने भी थे वो ट्वाइस हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब का. अब दिस डिवाइडेड बाय दिस अगर हम निकालते हैं तो वील गेट 0.68 एंड व्हेन वी मल्टीप्लाइड विद 100 वी गेट 68%. ओके. नाउ इन FCC unit cell we have you can say atoms touch each other at each face diagonal. हर एक फेस, 6 फेसेस हैं क्यूब के और हर एक फेस के सेंटर में एक एटम है. तो ये फेस के जो 4 एटम्स है वो इस तरह से, या तो इधर से एक डायगोनल देख लो या ये वाला फेस डायगोनल देख लो, दे आर इन टच विद ईच अदर. दे you can say only the atoms at face diagonal are in contact with each other, but atoms at the corners are not in contact. तो ये जो edge length है A, again यहाँ पे भी 2r नहीं है. As you can see that the empty space is generated here. Atoms are not in touch. जैसे यहाँ पे तो direct touch में थे. ठीक है. तो here also we have derived that this A is equal to 2√2r. Clear? तो ये 2√2r के इक्वल है, मतलब 2 से लार्जर है दोनों ही केसेस में. एंड A is equal to 2r की वैल्यू जो है अगर हम d एज्यूम कर लेते हैं, then we can write the relation between A and D is equal to d/√2. ठीक है, या √2d भी लिख सकते हो इसको. एंड A is equal to, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल A क्यूब है, ये क्यूब है बेटा, यहाँ पे A ही लिखा हुआ है इस टेबल में, A क्यूब है ये. अगर आप नोटबुक पे नोट कर रहे हो तो यू कैन राइट A क्यूब इज इक्वल टू, इसका हमने क्यूब ले लिया. ठीक है. तो 2√2r का होल क्यूब करने के बाद आपको मिल रहा है 16√2r क्यूब. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में आपके पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स है 4. तो 4 एटम्स का टोटल वॉल्यूम हो गया 4 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई आर क्यूब. एंड व्हेन वी डिवाइड दिस नंबर बाय दिस नंबर वी गेट 0.74 पैकिंग फ्रैक्शन. और पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 74% आपकी आ जाती है. तो दिस इज हाउ वी कैन. अब आपको इसमें से बेटा एक चीज करनी है कि यू नीड टू मेमोराइज दिस फॉर्मूला. एटलीस्ट A एंड R का तो याद कर ही लो, D तो फिर अपने आप रिलेट कर सकते हो. D इज इक्वल टू 2R पुट कर दो तो सारे फॉर्मूले आप डिराइव कर लोगे. एक आपको ये Z की वैल्यू तीनों लेटिस के लिए याद रखनी है, सिंपल, BCC एंड FCC. और एफिशिएंसी भी टिप पे कर लो, कई बार MCQs में ही आ जाता है, तो वहां पूरा डिराइव करने बैठोगे तो इट विल वेस्ट योर टाइम. ओके. ये देखो सबसे कम एफिशिएंसी आपको सिंपल क्यूबिक में मिलेगी जहां वॉइड्स बहुत लार्जर साइज के हैं, तो 52.4% है. बॉडी सेंटर्ड में जहां पे सिर्फ एक ही एटम सेंटर पे आया है तो एम्प्टी स्पेस थोड़े ज्यादा क्रिएट हुए, 68% है पैकिंग एफिशिएंसी. फेस सेंटर में हर एक फेस के सेंटर में एटम आ रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स बढ़ गए हैं यूनिट सेल के अंदर. दैट इज व्हाई द स्पेस व्हिच इज ऑक्यूपाइड बाय atoms is higher as compared to these other. So most efficient packing 3-dimensional जो है that is FCC और HCP. CCP और HCP दोनों में ही packing efficiency highest है, that is 74%. So these are most efficient crystal structure systems. And least efficient crystal packing is simple cubic packing, in which atoms are arranged only in एग्जैक्ट अलाइनमेंट. ए टाइप की लेयर होती है, बहुत बड़े बड़े वॉइड्स आते हैं यहाँ पे. तो इट्स देखो अप्रोक्सीमेटली 50% ही है ना, कि आधा ही क्रिस्टल एटम से फिल हुआ है, आधा खाली पड़ा है. 52.4 आप अप्रोक्सीमेट ले सकते हो, हाफ है. ओके. तो जस्ट आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू ऑल.